So we'll start with our next class, which is on economic order quantity. So what we'll do in this class, we'll start with understanding of EOQ, then we'll understand what is reorder point, then we'll understand what is lead time management, and finally we'll discuss safety stock and how do we define the safety stock using the concept of service level. So this is what we'll cover in this class. Okay, so let's get started. So guys, सबसे पहले EOQ is what? EOQ is economic order quantity, and this concept was given by a gentleman named Ford W. Harris. So Ford W. Harris is responsible for giving the concept of EOQ. Okay. Now, first thing is that this economic order quantity EOQ concept is a continuous inventory system. So in the previous class we understood two types. One was continuous, second one was periodic. So EOQ is continuous inventory system. It was also known as fixed order quantity. हर बार हम सेम क्वांटिटी का ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं. कब प्लेस करते हैं? व्हेन वी रीच अ predefined level of inventory, and this level is known as reorder point. This level is known as reorder point. Now guys, another thing which you should understand, there is another term which is lead time, LEAD, lead time. So what is lead time? Lead time is the time जिसमें order प्लेस करने के बाद ऑर्डर हमारे पास रिसीव होता है. अगर मैं आज मैंने कहा, suppose I am a shopkeeper in Delhi, I want to get bicycles from Ludhiana. अगर मैं आज लुधियाना फोन करता हूं कि मुझे 50 बाइसाइकिल्स तुम लोग दे दो, और उसको आने में जितना दिन लगेगा एट द गेट ऑफ माय शॉप, दैट इज नोन एज लीड टाइम. आज इफ टुडे डेट इज फर्स्ट and if I receive them maybe on 9th of this month, so lead time is 8 days. So lead time is the time spent between placing the order and actually receiving the goods. This is known as lead time. Reorder, what is reorder point? Reorder point is that quantity, reorder point is that level of inventory जब हम लोग order place करते हैं. Okay. So अब EOQ करता क्या guys? So what EOQ does? EOQ का काम क्या है? ठीक है. EOQ हमें क्या करता है? EOQ हमें वो ऑर्डर साइज बताता है. EOQ tells us that order size which will minimize the total cost. अभी कॉस्ट कहां से आएगा? अगेन हमने प्रीवियस क्लास में किया था. देयर वाज समथिंग नोन एज होल्डिंग कॉस्ट, सेकेंड वन वाज कैरिंग कॉस्ट. सो इन कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज जो क्वांटिटी, सो व्हाट इज दैट क्वांटिटी विच विल मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, दिस इज गिवन बाय EOQ और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है. So guys, before I go to economic order quantity, I want you guys to understand कि continuous system काम कैसे करता है, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था. But let us understand it even more कि continuous inventory system काम करता कैसे है. ठीक है. So guys, again for example, let us suppose you are selling Maggi. ठीक है. So you are selling Maggi and these are the timelines. ठीक है. And you are selling the Maggi. So let me do it nicely. Okay, cool. Now hypothetically तुम्हारे पास मैगी का जो लेवल है that is what? 80. So you keep inventory of 80. ठीक है. And date is what? Today's date is what? 0. Today date is 0. ठीक है. अब तुम्हारे पास 80 पैकेट्स है मैगी के, and it is given to you that तुम्हारा कंजम्पशन कितना है? 8 पैकेट्स पर डे. 8 पैकेट्स पर डे, ये तुम्हारा है कंजम्पशन. ठीक है. ओके. दूसरी चीज, इट इज गिवन दैट जब भी तुम ऑर्डर प्लेस करते हो, तुम्हारा ऑर्डर कितने दिन में आएगा? 3 दिन में आएगा. ठीक है. सो यूर लीड टाइम इज मे बी 3 days.
लीड टाइम इज 3 days, ठीक है। अब ये दो चीज हम लोगों को दिया है। अब देखो इन्वेंट्री का सिस्टम पीरियोडिक काम कैसे करता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद ईओ की आप उसके बाद ईओ क्यू आप लोग अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। तो आज टुडेज डे इज इक्वल टू 0 और आज मेरा लेवल कितना है 80 है, ठीक है। अब मेरे पास 80 पैकेट्स ऑफ मैगी आर देयर एट माय शॉप एंड मैं इसको बेचना शुरू करता हूं। आई स्टार्ट सेलिंग इट, ठीक है। सो एज आई स्टार्ट सेलिंग इट, ये कम कम होता रहेगा, राइट। कम कम 80 70 60 50 ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता रहेगा, ठीक है। और ये किसी पॉइंट पे जाके ये खत्म हो जाएगा, करेक्ट। किसी पॉइंट पर जाके जीरो हो जाएगा ये। सो फॉर एग्जाम्पल इसको जीरो होने में कितना दिन लगे, इसको जीरो होने में लगे मे बी हाइपोथेटिकली मे बी इसको जीरो होने में लगे और ये यहां से जाके ऐसे जाके, ठीक है। हाँ, तो इसको जीरो होने में मे बी लगे 10 दिन लगे, ठीक है। 10 दिन कहां से आया बाय द वे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 8 पैकेट्स पर डे, अगर टोटल 80 पैकेट थे, 8 पैकेट हर रोज बिक रहे हैं, तो 10 दिन में मेरा खत्म हो जाएगा इन्वेंट्री, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 10 दिन बाद मेरा जीरो हो गया। अब अगर मैं 10 तारीख को मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा और मैं कहूंगा कि अपने होलसेलर या रिटेलर जो भी है कि मुझे मैगी पैकेट दो, वो तो लाने में 3 दिन लगाएगा, करेक्ट। इसका मतलब मैं 10 को करूंगा तो ऑर्डर वो 13 तारीख को ऑर्डर लेके आएगा। फिर 10 से 13 के बीच में मैं तो खाली, आई डोंट हैव एनीथिंग टू सेल, करेक्ट। तो बेटर करने सिचुएशन को बेटर करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले ही 10 तारीख से पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। मुझे पता है कि 10 तारीख को माई इन्वेंट्री विल बी एट द लेवल ऑफ 0, तो मैं उसको पहले ही अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, ठीक है। सो अब मैं कितना पहले ऑर्डर प्लेस करूं, अब 3 दिन पहले, उसको 3 दिन लगेगा उसको आने में, तो मैं 3 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करूंगा। इसका मतलब मैं 7 तारीख को मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, 7 तारीख को। क्यों? क्योंकि उसको आने में 3 दिन लगता है, दिस इज गिवन टू अस, लीड टाइम इज 3 days। 7 तारीख को ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो 10 तारीख को 80 लेके आ जाएगा। सो ऑन द अदर हैंड माई लेवल विल ड्रॉप टू 0 ऑन दैट डे, और उसी दिन एकदम वो 80 लेके आ जाएगा एंड अगेन माई लेवल टू गो अप टू 80, और एकदम क्योंकि मेरे पास पूरा 80 लेके आएगा, दोबारा से 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 तारीख को जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, सो व्हाट वाज द इन्वेंट्री लेवल ऑन दैट डे, उस दिन कितना लेवल था ये। सो दिस लेवल इज नथिंग बट कि 3 दिन में कितना इन्वेंट्री लगेगा, राइट। दिस लेवल, क्योंकि 3 दिन बाद तो जीरो हो ही गया। सो 7 से 10 के बीच में कितना इन्वेंट्री खर्च होगा, दैट विल डिसाइड माई रीऑर्डर लेवल। सो 3 दिन 8 पैकेट पर डे, इसका मतलब दिस नंबर इज 24। सो this 24 is my reorder point, this 24 is my reorder point। इसको मैं लिख देता हूं, reorder point। इसका मतलब जब भी मेरा इन्वेंट्री 24 रह जाए, I'll place the order once again। फिर क्या होगा 10 तारीख को, अगेन 10 तारीख को फिर 80 हो गया, ठीक है। फिर मैं अपना सेल करना शुरू करता हूं, तो मेरा कब खत्म होगा ये, सो इट विल गेट ओवर ऑन 20th, ठीक है। पर मुझे ऑर्डर 3 दिन पहले प्लेस कर देना है, कब, when again my reorder level will be 24 and again it will get filled up once again। लो जी, फिर अगेन सेम थिंग 30th को, और मुझे ऑर्डर प्लेस कब करना है, 3 दिन पहले। क्यों? बिकॉज लीड टाइम इज 3 days। तो अगेन एट दिस लेवल ऑफ, कि जब मेरे पास 24 बचेंगे, आई विल प्लेस द ऑर्डर अगेन, ओके। सो अब जो ये टाइम है बिटवीन अराइवल एंड ऑर्डर प्लेसिंग, 7 से 10 या 17 से 20 या 27 से 30, दिस इज नथिंग बट माई लीड टाइम, जितना ऑर्डर आने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स, अच्छा, अब एक चीज हम बिल्कुल इससे समझ सकते हैं, अगेन गाइस, बिकॉज आई जनरली टेल पीपल की फॉर्मूला याद करने की मत सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो री ऑर्डर लेवल अगर कोई पूछेगा, री ऑर्डर लेवल कितना है, री ऑर्डर लेवल जो कि हमारा 24 आया, वो कहां से आया, कि जितनी मेरी हर दिन की डिमांड है, डिमांड पर डे इंटू लीड टाइम, 3 into 8, 24। So this is how we calculate the reorder level in case of continuous inventory system। So guys, this is how continuous
दिस हाउ कॉन्टिन्यूअस इन्वेंटरी सिस्टम वर्क्स। इस तरह कॉन्टिन्यूअस इन्वेंटरी सिस्टम काम करता है। ठीक है, नाउ ठीक है, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड इट वेल। रीऑर्डर क्या है, लीड टाइम क्या है, एंड दिस इज ऑर्डर साइकिल, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब अब गाइज ये सिस्टम तो ऐसे काम करता है। अब हम वापस अपने सवाल पे आते हैं कि ईओक्यू क्या करता है गाइज। ईओक्यू क्या करता है, ईओक्यू हमारा, ईओक्यू हमें वो ऑर्डर का साइज बताएगा एट विच माई टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, माई टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सो इफ आई ड्रॉ, अगर मैं अपना एक ओके, so total cost, so this total cost is composed of carrying cost. I'm writing it with different colors और आप अभी समझ जाओगे कि क्यों। so total cost is equal to carrying cost plus ordering cost. total cost is carrying cost plus ordering cost. अब इसको हम अच्छे समझते हैं कि वो क्या रहा है। Okay, so guys, what do I plot? On the y-axis, I plot the cost. ठीक है, on the x-axis, I plot my Q. Q is order quantity. Q is what? Order quantity. ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं, चलो ऑर्डरिंग, पहले कैरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। चलो, कैरिंग कॉस्ट इन ग्रीन कलर। सो जैसे जैसे मैं हर ऑर्डर का साइज बढ़ाता जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, आई एम ऑर्डरिंग मोर, आई एम प्लेसिंग फ्यूअर ऑर्डर्स, और इसका मतलब क्या है, आई हैव टू स्टोर मोर, आई नीड अ लार्जर वेयर हाउस, सो माई कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। सो जैसे जैसे मेरा ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा, सॉरी, जैसे जैसे मेरा ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगा, सो माय कैरिंग कॉस्ट, और अब कैरिंग कॉस्ट को हम लोग नाम देना शुरू कर देते हैं, कैरिंग कॉस्ट सीसी, कैरिंग कॉस्ट सीसी, दिस विल कीप इन इंक्रीजिंग। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को नाम हम देते हैं सीओ। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या होगा, एज माई ऑर्डर साइज इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मैं ऑर्डर साइज बढ़ाता जा रहा हूं, आई टू प्लेस फ्यूअर ऑर्डर्स, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, इट इज फिक्स पर ऑर्डर, इसका मतलब इट विल कीप कमिंग डाउन। व्हाई? बिकॉज आई एम प्लेसिंग लेसर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्यों? बिकॉज माई ऑर्डर साइज इज इंक्रीजिंग। यहाँ ये वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था इन द प्रीवियस क्लास, सो डू आई हैव दैट? No, I don't have that, but I hope you guys remember कि कैसे, how this keep changing. Yes, so I have to place lesser number of orders because my quantity in each order is more. ठीक है, इसका मतलब मेरा the cost will keep coming down, the cost will keep coming down, so this becomes my ordering cost. So what is total cost? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे and this will give us the total cost. TC is my total cost. Done. ठीक है, सो गाइज अब ईओक्यू में हम क्या चाहते हैं, सो व्हाट डू यू वांट इन ईओक्यू? ईओक्यू में मैं वो वाला क्वांटिटी निकालना चाहता हूं जिसपे मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, सो पहले हम लोग अपना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब गाइज कैरिंग कॉस्ट क्या है? सो अगर हर एक ऑर्डर का साइज, इफ साइज ऑफ एवरी ऑर्डर इज क्यू, सो हम उसका हाफ ले लेते हैं, हम उसका एवरेज ले लेते हैं क्यू बाई 2, और एक को कैरिंग करने का कॉस्ट कितना है, इनटू सीसी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि कितने ऑर्डर्स हैं। टोटल डिमांड अगर हमारा डी है, कैपिटल डी इज व्हाट, टोटल डिमांड, और हर एक ऑर्डर में कितना क्यू है, सो डी बाई क्यू विल गिव अस कि कितने ऑर्डर प्लेस किए। जैसे कि अगर 2400 मेरा टोटल एनुअल डिमांड है, और अगर मैं 200 के ऑर्डर प्लेस करता हूँ, 2400 डिवाइड बाई 200 विल बी 12, सो 12 ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 400 के ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो 6 ऑर्डर प्लेस करूंगा। अगर 800 के ऑर्डर प्लेस करता हूँ 3 ऑर्डर प्लेस करूंगा। सो आई फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स
into ordering cost, which is dependent upon number of orders only. CO is my ordering cost. So this becomes my total cost. अब मुझे इस टोटल कॉस्ट को मुझे करना है मिनिमाइज, मुझे इसका करना मिनिमाइज। अब गाइज वन ऑप्शन इज तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। लेकिन कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी सिंपल। कि ये जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दिस इज मीटिंग एट अ पॉइंट, सॉरी, ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है, इसका मिनिमम वैल्यू इज लाइंग एट अ पॉइंट वेयर carrying cost is equal to ordering cost. Therefore, this will be minimum at a point, कौन से point पे? At that point where these two are equal to each other. So it will give us some q at which q both of them will be equal to each other, and just simplify this equation. What you will get? You will get your q to be 2 times into CO into D divided by CC under root. This is known as EOQ. EOQ or economic order quantity. So guys, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले में आइटम क्या प्राइस का वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है उसका। इट डिपेंड्स अपॉन टोटल डिमांड कितनी है पूरे साल की, या जो भी टाइम फ्रेम हमने लिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना है। सो दिस इज द फेमस फॉर्मूला ऑफ EOQ व्हिच वाज गिवन बाय मिस्टर फोर्ड हैरिस, जो कि फोर्ड हैरिस ने हम लोगों को दिया था। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट EOQ व्हिच इज 2 times COD by CC. सो दिस हाउ वी कैलकुलेट। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें क्या हमने निकाला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमने वो ऑर्डर साइज निकाला जिससे मेरा टोटल कॉस्ट इज गेटिंग मिनिमाइज्ड, एंड दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कूल, आगे बढ़ते हैं गाइज। सो बिफोर वी मूव फर्दर, ये जो हमने सारा एनालिसिस किया, इसमें ना कुछ अजम्पशंस हैं, एंड विल गो विद दैट अजम्पशंस, विल अंडरस्टैंड दिस अजम्पशन केयरफुली। नंबर 1 कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज कांस्टेंट, हर बार जो फिक्स्ड है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज दैट इज फिक्स्ड। जो रेट ऑफ डिमांड है दैट इज नोन एंड दैट इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। सो मेरा जो रेट ऑफ डिमांड या रेट ऑफ कंजम्पशन है दैट इज इवनली स्प्रेड। थर्ड, लीड टाइम इज सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार फोन किया 3 दिन में आएगा, अगली बार शायद 5 दिन में आ जाए, ऐसा नहीं है, लीड टाइम इज फिक्स्ड। नेक्स्ट अजम्पशन इज purchase price of item is constant and there is no quantity discounts are available। मतलब इस फॉर्मूले में अनदर अजम्पशन इज कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम ज्यादा आइटम ले लोगे तो प्राइस कम लगेगा, द प्राइस इज कांस्टेंट। अनदर थिंग दैट होल बैच इज डिलीवर्ड एट वंस, कि तुम अगर 80 ऑर्डर करते हो तो 80 ही आएगा। अजम्पशन ये है कि ऐसा नहीं होगा कि 80 का ऑर्डर किया तो 60 आज भेज देता हूँ, 23 दिन बाद भेज दूंगा, ऐसा नहीं है। लास्ट थिंग, ओनली वन प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व्ड। सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ EOQ। अब गाइज हम लोग आगे कुछ ऐसे मॉडल्स भी करेंगे कि जहां विल डेविएट फ्रॉम दीज अजम्पशंस, जैसे कि लीड टाइम फिक्स नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अगर क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल हो फिर क्या होगा, अगर डिमांड रेट फ्लक्चुएट करता तो फिर क्या होगा। सो विल गो, और इन सारी अजम्पशंस को हम ट्वीक करेंगे। बट फॉर नाउ इन दिस क्लास वी आर स्टडिंग EOQ, बेसिक EOQ मॉडल, कि जिसकी ये सारी अजम्पशंस हैं 1 by 1। ओके, अब EOQ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस लुक एट अ क्वेश्चन ऑन EOQ। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, the Asian Paints want to determine the optimal order size and total inventory cost for tractor emulsion paint given an estimated annual demand is 10,000 liters of paint। So guys, हम लोगों को जो दिया वो लिख लेते हैं सबसे पहले। It is given to us that my total annual demand is 10,000 liters। डिमांड कितने का है? पूरे साल का, पर एनम। ठीक है। सेकेंड थिंग, एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज 0.75 पर लीटर। ठीक है, सो एनुअल कैरिंग कोस्ट and CC, annual carrying cost is rupees 0.75 per liter, okay, per annum।
ठीक है गाइस, माइंड इट, कैरिंग कॉस्ट में टाइम का कंपोनेंट है यूनिट के साथ साथ, हमेशा उसको ध्यान रखना है। देन वी हैव टू लुक एट ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? इज इट फिक्स्ड? रुपीज 150 per order. Rupees 150 per order is my ordering cost. So they want to find out कि कितना हमें ऑर्डर प्लेस करना है, कब कब करना है, कितने टाइम बाद करना है। एंड इट इज गिवन दैट कंपनी प्रोसेसेस ऑर्डर फॉर 311 days इन अ ईयर। 311 दिन ही कंपनी ऑर्डर अपने प्लेस करती है। ओके, सो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड अवर ईओक्यू। ईओक्यू, और ईओक्यू कहां से आएगा? इस वाले फॉर्मूले से जो हमने सीखा है, 2 times CO D by CC under root. So just put up these values. So what do we get? 2 times CO is 150 into 10,000 divided by 0.75 under root, and I get this number to be 2000. So हर एक ऑर्डर का साइज आ गया इज 2000। टोटल मेरा कितना डिमांड है? 10,000। इसका मतलब मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? टोटल D by Q। तो टोटल मेरा है 10,000 और मुझे 2000 हर बार ऑर्डर करना है, मतलब मुझे 5 ऑर्डर मेरे को प्लेस करने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच आर टू बी प्लेस्ड इज 5। नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नेक्स्ट बात क्या आती है कि ऑर्डर साइकिल क्या है, कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स। सो टोटल 311 डेज में हम लोग काम करते हैं और 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। सो द टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स इज 62.2 डेज। सो दिस इज हाउ वी फाइंड। पहले हम ईओक्यू निकालते हैं, फिर ईओक्यू की मदद से हम निकालते हैं कि कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, और कितने ऑर्डर प्लेस करने से हम निकालते हैं कि कितने कितने दिन बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेट्स लुक एट वन मोर गाइज। अ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर क्लेम्स a building material supplier obtains his bagged cement from a single supplier. Demand is reasonably constant throughout the year, and last year the company sold 2,000 tons of this product. It estimates that cost of placing an order is 25 each time, and annual cost of carrying inventory is 20% of purchase cost. पिछली बार guys carrying cost क्या था? पिछली बार carrying cost था 0.75 पर लीटर पर एनम। अब की बार क्या है? 20% ऑफ परचेज। तो पिछली बार इट वाज इन एब्सोल्यूट टर्म, इस बार परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट दिया है। एंड व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट? द कंपनी परचेज अ सीमेंट फॉर ₹60 पर टन। दिस इज द प्राइस। हाउ मच शुड कंपनी ऑर्डर एट अ टाइम? एक एक करके लिखते हैं गाइज। सो हमारा टोटल डिमांड कितना है पूरे साल का? 2000 टन। उसके बाद we have been given ordering cost। ordering cost कितना है? ₹25 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट इज यहां से लेके आएंगे 20% ऑफ परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कितना है? ₹60 पर टन इंटू ₹60। एंड दिस इज एनुअल कॉस्ट, पर एनम भी लिखना है, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी ₹12 पर टन। पर टन कहां से आया? यहां से आया, पर एनम। डन, सीसीसी आ गया। अब बिल्कुल सिंपल, अब मुझे ईओक्यू निकालना है। सो आई फाइंड माय ईओक्यू। ईओक्यू इज गिवन बाय 2C0 D by CC. Just put up these values and you will get it to be 91.28 tons. So this becomes my EOQ. ठीक है। Now we have to find out कि ये तो है कि how much we have to order। अगर हमसे पूछे what is total cost of ordering, what is total cost of ordering? So guys, total cost of ordering is given by, total cost of ordering कहां से आएगा? Total cost of ordering is given by Q by 2 into CC plus CO into D by Q। बाकी Q हमने निकाल लिया है। So this Q will come from here, this Q will come from here, बाकी CCD हमें पता ही है। So put up these values and your total cost will come out to be 1095.45। पिछले साल में भी अगर हम टोटल कॉस्ट अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, हाउ डू वी फाइंड? अगेन सेम थिंग गाइज,
पिछले क्वेश्चन में हम दोबारा से अभी ऑर्डरिंग को टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं. सो टोटल कॉस्ट इज गिवन बाई Q by 2 into CC plus D by Q into CO. Just put up these values and it comes out to be 750. ये भी 750 is equal to rupees 1500. By the way, दोनों 750 क्यों आया? Because EOQ पर, because on the point of EOQ, both of them are same. This is that point, right? Because at this point of EOQ, both of them are same. तो दोनों सेम आएगा ही. So through the EOQ formula, जब हम total cost निकालते हैं, so this cost and this cost will be equal to each other and total will be 1500. Okay, so guys, अभी तक हमने क्या what we have understood till now, we have understood till now that हमें कि हम लोगों को कितना ऑर्डर करना है. ठीक है. नाउ व्हाट इज रीऑर्डर पॉइंट? रीऑर्डर पॉइंट अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले देखा. सो व्हाट वाज द रीऑर्डर पॉइंट? रीऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट है जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड उसके बाद ऑर्डर आने में कुछ टाइम लगेगा. देयरफॉर वी नीड लीड टाइम आल्सो. हमें कुछ लीड टाइम भी चाहिए. ठीक है. अब गाइस वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे. ये वाला एनालिसिस हम लोग वापस आते हैं. ठीक है. And because I'll need some space now. Okay. So guys, once again, what is my reorder point? What is my reorder point? Reorder point वो पॉइंट है जब मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना है. सो कैसे डिसाइड होगा कि मेरा हर रोजा कितना कंजम्पशन है, डिमांड रेट या डेली डिमांड रेट या एवरेज डिमांड रेट इनटू कितने दिन में ऑर्डर प्लेस करने के बाद आता है, विच इज लीड टाइम. सो दिस इज माई रीऑर्डर पॉइंट. ओके, तो यहां तक बिल्कुल आसान है. एंड इन दिस केस 8 into 3 रीऑर्डर पॉइंट इज 24 days. ठीक है. अब गाइज इस जो ये मॉडल हमने अपने सामने बनाया उसको मैं रिवाइज करता हूं. उसमें हम लोगों ने क्या बात किया कि मेरे पास 80 मैगी के पैकेट थे. मैं उनको बेचना शुरू करता हूं. एवरी डे आई एम सेलिंग. एवरी डे माई डिमांड इज व्हाट? एवरी डे माई डिमांड इज 8 पैकेट्स पर डे. ठीक है. ये मेरा हर दिन का डिमांड है. ओके. एंड आने में कितना टाइम लगता है? माई लीड टाइम इज 3 days. जब मैं फोन करूंगा कि पैकेट दे दो मैगी के अपने रिटेलर या होलसेलर को, 3 दिन लगाएगा. अब मेरे पास आज के दिन 80 है, हर रोज 8 खर्च हो रहा है, तो मतलब 10 दिन चलेगा. तो 10 तारीख को मेरा सारा इन्वेंटरी स्टॉक मेरा खत्म हो जाएगा. तो अब क्योंकि 10 तारीख को मेरा खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगा. क्यों? क्योंकि उसको आने में समय लगता है, और आने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं लीड टाइम. उसको आने में 3 दिन लगेंगे, तो मैं 3 दिन पहले मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा. और उस 3 दिन पहले जो मेरा क्वांटिटी होगा वो कितना होगा कि उन 3 दिनों में जितना खर्च होगा. एंड देयरफॉर दैट रीऑर्डर पॉइंट इज गिवन बाय 3 दिन में, और हर दिन में कितना लगेगा? 8. एंड देयरफॉर रीऑर्डर पॉइंट इज 24 यूनिट्स ऑफ मैगी. डन. ओके. अब गाइज ये तो है बिल्कुल एक परफेक्ट सिनेरियो. ठीक है. अब इस सिनेरियो में ये कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है. क्या हो सकता है? कि आई स्टार्ट, मेरा एवरेज डिमांड 8 पैकेट्स पर डे है, लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है कि मे बी आई सेल मोर. करेक्ट. 8 के बजाय मेरे 12 पैकेट चले जाए. करेक्ट. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू डेविएट फ्रॉम माय अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू. ठीक है. सो ये हो सकता है कभी कि मेरी 8 के बजाय ज्यादा पैकेट चले जाएं. तो एक तो ये अनसर्टेनिटी है. सो पहली अनसर्टेनिटी क्या हुई गाइस? कि माय डिमांड रेट फ्लक्चुएट्स. ठीक है. कि मेरे हर रोज 8 पैकेट लगने थे, लेकिन मैंने हर रोज मेरे लग गए मे बी 10 पैकेट लग गए. तो जो चीज 10 दिन चलनी थी वो 8 दिन ही चलेगी. करेक्ट. तो पहला है मेरा डिमांड माइट फ्लक्चुएट एंड दिस विल लीड टू व्हाट? इससे क्या होगा? मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा. करेक्ट. ये तो पहली पॉसिबिलिटी है. दूसरी रियल लाइफ पॉसिबिलिटी है कि वो लीड टाइम इज 3 days बट इट माइट टेक मोर टाइम. उसने बोला तो है कि 3 दिन में आ जाएगा मैगी, बट समथिंग हैपेंड, उसने 3 की बजाय 4 दिन लगा दिया. सो लीड टाइम फ्लक्चुएट्स. अगेन स्टॉक आउट कैन हैपन. करेक्ट.
सो डिमांड रेट ऊपर ज्यादा हो सकता है मेरा मैगी का, आई आई मेरी दुकान पे ज्यादा मैगी बिक सकती है। दूसरा, मेरा लीड टाइम कैन आल्सो चेंज। दीज आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर ये दोनों मेरी पॉसिबिलिटी हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इन पॉसिबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए, इन पॉसिबिलिटी को एड्रेस करने के लिए इन पॉसिबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए गाइज, आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का दूसरा नाम भी है बफर स्टॉक। इसका तीसरा नाम भी है रिजर्व स्टॉक। इसका मतलब क्या है गाइज? सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है? सो सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है कि मैं कभी जीरो होने ही नहीं दूं। मैं अपना इन्वेंट्री को इस तरह प्लान करूं कि कभी जीरो हो ही नहीं, और कुछ मिनिमम तो हमेशा मेरे पास एज अ सेफ्टी, मेरे पास हमेशा ही कुछ मिनिमम स्टॉक तो मेरे पास हमेशा ही पड़ा रहे। सो जितना रीऑर्डर पॉइंट पे मेरा जो क्वांटिटी आया, मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी जो मेरा आया, इससे मैं उस रीऑर्डर में कुछ सेफ्टी स्टॉक भी ऐड कर दूं। मैं उस रीऑर्डर में सेफ्टी स्टॉक भी ऐड कर दूं। ओके, सो अगर मैं अपना सेफ्टी स्टॉक भी ऐड ऐड कर दूं, अगर अपना सेफ्टी स्टॉक भी ऐड कर दूं, सो माय दिस सो मेरा जो ये वाला रीऑर्डर पॉइंट का डेफिनेशन था, डेफिनेशन ये हल्का चेंज हो जाएगा। क्या होगा ये? डिमांड रेट इनटू लीड टाइम, ये तो रहेगा ही, प्लस जो मैंने प्लान किया है, एसएस लिख देता हूं, सेफ्टी स्टॉक जो मैंने प्लान किया है वो भी मेरे रीऑर्डर पॉइंट है मेरा, आ जाएगा। ओ गाइस, इसको तुम फिजिकली समझ भी सकते हो, इसी वाले डायग्राम को जो हमने अभी हमने जो बनाया है अभी, ठीक है, कि अ, कि मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मैं अपना 10 में सेफ्टी स्टॉक रखूंगा, मैं 10 में सेफ्टी स्टॉक रखूंगा। ठीक है, अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना 10 सेफ्टी स्टॉक मैं रखूंगा, तो मतलब मैं जो, इफ दिस वाज 80, दिस इज मे बी 10, ठीक है, तो हम इस तरह प्लान करता हूं कि मेरा 10 को मुझे कभी छूना ही नहीं पड़े। सो यहां मेरा ऑर्डर आ जाए और मुझे 10 को कभी छूना नहीं पड़े, एंड दिस बिकम्स माई एसएस, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। दिस बिकम्स माई बफर स्टॉक। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा 3 दिन पहले ही, करेक्ट। लेकिन जो 3 दिन पहले ऑर्डर का क्वांटिटी होगा वो कितना होगा? ये कितना हुआ? 24, जो कैलकुलेट, और ये इसमें 10 और ऐड हो गया, 10। सो मेरा ऑर्डर रीऑर्डर पॉइंट विल बी 34। This is how this 10 is added, and therefore the revised formula for reorder point, अगर मुझे सेफ्टी स्टॉक भी रखना है तो विल बी डिमांड रेट इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। डिमांड रेट इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। सो गाइज, वंस अगेन समराइज करते हैं। अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक नहीं है, देन रीऑर्डर पॉइंट इज गिवन बाय डिमांड रेट इनटू लीड टाइम। और अगर मुझे सेफ्टी स्टॉक भी रखना है फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो मैं उतना और जोड़ दूंगा उसमें बस, एंड दैट विल गिव मी अ रिवाइज्ड रीऑर्डर पॉइंट। दैट विल गिव मी रिवाइज्ड रीऑर्डर पॉइंट। ओके, अब लेट अस लुक एट वन न्यूमेरिकल ऑन दिस आल्सो, ठीक है। सो कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट। अपना एक्सपेक्टेड यूसेज कितना? 1 लाख यूनिट। कितने पीरियड में? 250 दिन में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर इज रुपीज 20, कैरिंग कॉस्ट इज रुपीज 0.50, लीड टाइम इज 5 days, रिजर्व हमें रिजर्व रखना है 3 दिन का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का डिमांड देख लेते हैं कि एक दिन में खर्च कितना होगा। सो हमारे पास टोटल कितना है? टोटल हमारे पास डिमांड है, आई कैलकुलेट माय डी इज डिमांड पर डे, कैपिटल डी इज टोटल डिमांड इनटू जितने भी अपने पास जितने भी अपने पास नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सो टोटल है अपना 1 लाख। 250 दिन चलता है, इसका मतलब हर रोज कितना चलेगा? 400
पर डे। अब मेरा हर दिन का डिमांड मेरे पास आ गया, ठीक है। निकालना क्या है मुझे? रीऑर्डर पॉइंट निकालना है। सो गाइस हम रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकालते हैं? वंस अगेन रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल ही बोलते हैं। सो दैट इज लीड टाइम। लीड टाइम कितना है गाइस? लीड टाइम 5 डेज, ठीक है। हाँ, अब उन 5 दिन में जितना भी खर्च होगा, हर 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 दिन कितना होगा? 400। 5 × 400 विल गिव अस द रीऑर्डर पॉइंट। लेकिन क्योंकि इस वाले केस में मुझे सेफ्टी स्टॉक भी चाहिए, सेफ्टी स्टॉक भी चाहिए, तो सेफ्टी स्टॉक मुझे कितने दिन का रखना है? 3 दिन का रखना है। सो उस 3 दिन में कितना खर्च होगा? 3 × 400। सो दिस विल गिव मी आंसर, एंड दिस विल बी reorder point will be 3200 units, 3200 units. Okay. अब गाइज अगली चीज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ डू वी डिसाइड कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है? अभी जैसे मैंने यहां बताया, पिछले इस क्वेश्चन में था कि 3 दिन का रखना है। इस वाले क्वेश्चन में था कि जो मैंने एग्जांपल लिया यहां कि 10 दिन का सेफ्टी स्टॉक, सॉरी 10 यूनिट सेफ्टी स्टॉक रखना है। बट हाउ डू वी डिसाइड कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है? अभी तक तो हमने क्या किया कि सेफ्टी स्टॉक हमें दिया हुआ था। सो हाउ डू वी डिसाइड अबाउट द सेफ्टी स्टॉक? सेफ्टी स्टॉक हम डिसाइड कैसे करते हैं? सो वी हैव टू डिस्कस दैट, ठीक है। नाउ गाइस सेफ्टी स्टॉक विल डिपेंड अपॉन व्हाट? सेफ्टी स्टॉक विल डिपेंड अपॉन द सर्विस लेवल। सेफ्टी स्टॉक विल डिपेंड अपॉन द सर्विस लेवल। अब सवाल आता है सर्विस लेवल क्या है, ठीक है। सर्विस लेवल है, प्रोबेबिलिटी है कि द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विल बी सफिशिएंट टू मीट द डिमांड। इसका मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूं सर्विस लेवल ऑफ 90%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है दैट माई इन्वेंट्री विल मीट द डिमांड, और सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी है दैट माई इन्वेंट्री विल नॉट लीड द डिमांड, विल नॉट मीट द डिमांड, एंड देयर विल बी अ स्टॉक आउट। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सर्विस लेवल, ठीक है। अब गाइज सर्विस लेवल जो हम लोग निकालते हैं, उसके लिए वी मेक अ अजम्पशन, एंड दैट अजम्पशन इज दैट कि हमारा जो हर रोज का डिमांड है, जो छोटा डी हम लोगों ने किया था, एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। सो अजम्पशन इज दैट दिस एवरेज डेली डिमांड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। This average daily demand is normally distributed. अगर average daily demand normally distributed है, then my safety stock, is given by Z into standard deviation into lead time under root. So what is Z? What is Z? Z is number of standard deviations corresponding to desired service level. So service level define करेगा Z की वैल्यू. What is this? This is जो standard deviation of daily demand, and of course L is my lead time. So guys, this is how we find the safety stock. This is how we find the safety stock. Let us look at it in form of a question. Yes. For the previous example on Asian Paints, we'll assume that daily demand is normally distributed. It is given with an average daily demand of 30 liters and standard deviation is 5 liters of paint per day. The lead time of receiving the new order of paint is 10 days. Determine the reorder point and safety stock if the store wants a service level of 95%. इसका मतलब we want 95% probability कि हमारा inventory level will meet the demand, and probability of stock out is only 5%. Okay. The value of Z to this level is also given, which is 1.65. Therefore, now let's write the what is given in the question. My daily demand is given to be 30, standard deviation is given to be 5, lead time is given to be 10, and for 95%,
सर्विस लेवल Z वैल्यू इज गिवन टू बी 1.96. निकालना क्या है हमें? वी हैव टू फाइंड आउट सेफ्टी स्टॉक which is given by Z sigma d into L under root. So we'll put up these values 1.65 into 5 into 10 under root, and this comes out to be 26.1 liters. So this becomes my safety point. अब हमें निकालना क्या है? हमें तो रीऑर्डर सेफ्टी स्टॉक, हमें रीऑर्डर पॉइंट निकालना था. सो दिस रीऑर्डर पॉइंट हमें कैसे डिसाइड होगा? लीड टाइम इनटू डेली डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक जो हम लोगों ने निकाला है. अब लीड टाइम कितना है? 10 days. डेली कितना कंजम्पशन है? 30 प्लस 26.1 जो हम लोगों ने निकाला है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 326.1 liters. So this becomes my reorder point, and this is my safety stock. Reorder point and safety stock. Okay. So that is all for the topic of EOQ. Let's look at some questions. An inventory control in which in inventory control which of the following does not affect the reorder level? So reorder level depend करता है daily usage पे yes, lead time पे yes, safety stock पे yes, holding stock पे नहीं. Therefore correct answer is D. इस पे depend नहीं करता है. Next one. Okay. Next one. In EOQ, if EOQ assumptions are met, a company orders the EOQ each time an order is placed. Then what happens in case of EOQ? EOQ, total costs are minimized. Total cost हमारा they get minimized. Next, which of the following best represents the optimal EOQ, where total usage is this? Cost per order is this, carrying cost per unit for each period is rupees 1. Again guys, you have to use the EOQ formula again for this, which is 2 times COD by CC under root. So 2 times. So what is ordering cost? 180. What is D? 1 lakh divided by 1 under root. So this becomes 36 into 10 lakhs. Yes, under root. So this will be 6 into 1000. 6000. Answer should be A. Correct. Okay, next one. If average demand of item is 21 units per day, ठीक है. Safety stock is 4 units. Okay. Lead time is 2 days. What is reorder point? So reorder point पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2. पार्ट 1 में हम लोग क्या करते हैं कि लीड टाइम के दौरान जब तक सामान आएगा इनटू डेली डिमांड प्लस हम इसमें सेफ्टी स्टॉक को हम इसमें ऐड कर देते हैं. सो लीड टाइम इज गिवन टू बी 2 days. हर रोज का डिमांड है 21 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज गिवन टू 4 units. 42 plus 4, 46. Okay. A company XYZ uses paper at constant rate of 10,000 kg per year. The cost of paper is rupees 80 per kg. Company estimate that it costs rupees 400 to place an order. Carrying cost is 10% per year. How many days the order should be placed? Again, guys, 2 times into ordering cost, which is 400 into 10,000 total D divided by paper cost is 10 and cost is 10% of 80. So let me write it to be 8. So this will be so this will be 4 to 8. 8 cancels out. So 100 and 0 under root. This comes out to be 1000. So 1000 is my what order size और टोटल कितना है 10,000. इसका मतलब कितने ऑर्डर हमें प्लेस करेंगे? हर एक ऑर्डर अगर 1000 का है तो
will place 10 orders, ठीक है. And in how many days order should be placed? In how many days order should be placed? Total number of days कितने होते हैं एक साल में? 365. ऑर्डर कितने प्लेस करने हैं? 10. 36.5 डेज में ऑर्डर प्लेस होगा. करेक्ट आंसर इज बी. ओके. Which of the following hold true for the safety stock? Greater the risk of safety stock, larger safety stock needed. Okay, yes. अगर safety stock का हमें ज्यादा रिस्क है तो हमें ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा. Larger will be safety stock. Correct answer is A. Inventory level reorder point is, again guys, काफी बार हम लोग कर चुके हैं. Average daily demand into lead time plus safety stock, दोनों को हम ऐड करते हैं. Suppose EOQ model is in use, the following would typically cause the optimal order quantity to decrease. So Q is 2 times D CO by CC. अब इसने कहा कि कब ये कम होगा. Q कब कम होगा? Q तब कम होगा जब या तो D कम होगा या C0 कम होगा या CC बढ़ेगा. अब इसमें से क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में? इंक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम होना चाहिए. इंक्रीज इन डिमांड नहीं, डिमांड भी कम होना चाहिए. इंक्रीजिंग होल्डिंग कॉस्ट, यस ये होना चाहिए. इंक्रीजिंग सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक का तो ईओक्यू से कुछ लेना देना है ही नहीं. देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी. ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास गाइज. थैंक यू सो मच.